ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਾਨੀ ਗਾਂਧੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 180 ਦਰਜੇ ਉਲਟ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਲੈਨਨਵਾਦ, ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੋਏ ਪਾਥ ਬਿਲਕੁਲ 180 ਦਰਜੇ ਆਪੋਜਿਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਇਆ? ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੜਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ? देखिए, हम अगर गांधी के सोच को भी ध्यान से देखें तो गांधी भी इस व्यवस्था पर यकीन नहीं करते हैं। गांधी की अगर आप हिंद स्वराज पढ़ें जो उन्होंने 1909 में लिखी है और उसके बाद की भी किताबें पढ़ें तो गांधी पूरी की पूरी अदालत पर अविश्वास कर रहे हैं, जुडिशियरी सिस्टम को बेकार बता रहे हैं, वो पार्लियामेंट को खराब बता रहे हैं, कह रहे हैं इसमें से कुछ नहीं होगा, इस सिस्टम को बांझ कह रहे हैं कि ये कुछ पैदा नहीं कर सकती, ये सिस्टम बेकार है। गांधी एनार्किज्म की एक तरह से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमको तो अपना राज खुद ही चलाना है, हमको अपने गांव में कम्युनिटी अपने सारे काम खुद करेगी। वो गवर्नमेंट को बिल्कुल एक तरीके से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की हमको जरूरत ही नहीं और हमें ऐसे तरफ जाना है जहां गवर्नमेंट की बिल्कुल जरूरत ना पड़े, हम अपने सारे काम खुद कर लेंगे, हम अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपनी न्याय व्यवस्था, अपने झगड़े सब गांव खुद निपटा लेगा। तो गांधी भी कोई इस सिस्टम को मजबूत करने की बात नहीं कह रहे हैं। और मैंने जो अपने जीवन में काम किया, अगर और मैं अदालतों में गया और अदालतों में मुझे पूरी तरीके से दुत्कार दिया गया, न्याय नहीं दिया गया। मैं आदिवासियों को लेके गया, हमारे 700 मुकदमे मानव अधिकार के
2023 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिए 3 महीने के अंदर, जिसमें ऐसे ऐसे मामले थे कि पिद्दागेलूर में 40 महिलाओं से बलात्कार किया सुरक्षा बल के सिपाहियों ने। 28 महिलाएं कोर्ट में गईं, उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी। अर्जुन नाम का एक नाबालिग बच्चा, उसको पकड़ के पुलिस ने जेल में डाल दिया। उसको जब जमानत पर छुड़ा लिया गया, वो घर गया, थानेदार ने जाके उस बच्चे को गोली से उड़ा दिया। उसकी पिटीशन डिसमिस कर दी गई, उसकी फैमिली की पिटीशन। इस तरीके बलात्कार के मामले और भी बलात्कारों के मामले, जज ने डायस पर बैठकर कहा कि बलात्कार कर लिया तो क्या हो गया, हमारे भी तो सिपाही मर रहे हैं, मतलब बलात्कार ठीक है, इन औरतों के साथ बलात्कार होना चाहिए। तो इस तरीके से और आपको तो मालूम है कि किस तरीके से 16 आदिवासियों को जो गोमपाल गांव में सीआरपीएफ ने कत्ल किया, बच्चे का हाथ काट दिया, उसकी मां की सिर में चाकू मार दिया, 8 साल की मौसी का गला काट दिया। उस मामले में जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को और सीआरपीएफ को बचाने के लिए मेरे ऊपर ही 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। तो न्याय व्यवस्था ने हमें बिल्कुल दुत्कार दिया, निराश कर दिया, या कह दिया कि हम तुम्हें न्याय देंगे नहीं, आदिवासियों को न्याय मिलेगा ही नहीं। आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये समझ रहा था कि न्याय मिलेगा, मुझे शुरू से ही पता था कि न्याय नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ इस सिस्टम को एक्सपोज करना चाहता था कि यह सिस्टम जनता के लिए नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरा रास्ता ही लेना पड़ेगा। और वो रास्ता तो 100 साल पहले गांधी हमें कह चुके थे कि यह सिस्टम बेकार है। हमें गांव का सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, लोगों की अपनी सरकार, जिसको ग्राम सरकार कहते हैं, गांव की सरकार, वही सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। दिल्ली हमको चलाए, ये वाला सिस्टम भारत में चलेगा ही नहीं, दुनिया में कहीं नहीं चलेगा कि एक केंद्रीकृत सत्ता पूरी देश के लोगों को कंट्रोल करेगी। ये सिस्टम गांधी का सिस्टम नहीं है। तो हम, अगर नक्सलाइट का इसमें विश्वास नहीं था तो हमारा भी विश्वास नहीं था। ओके, गांधी का भी विश्वास इस सिस्टम में कभी नहीं रहा। तो हम लोग भी अनार्किस्ट हैं, हम भी राज्य व्यवस्था को मजबूत कर दो, मिलिट्री मजबूत कर दो, पुलिस मजबूत कर दो, अदालत मजबूत कर दो, इस सिस्टम को मानते ही नहीं है। हम मानते हैं जनता अपनी न्याय व्यवस्था चलाएगी, ग्राम स्वराज्य होगा। हम तो ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं। गांव में अपनी न्याय व्यवस्था होगी, अपनी शिक्षा प्रणाली होगी, अपना ही प्रोडक्शन और अपनी इकोनॉमी होगी। हम गांव की इकोनॉमी को चलाएंगे, गांव वाले चलाएंगे, यही गांधी का सपना था। तो इन्हें वे अंदर से हम लोग एक हैं। और ये बात कई पुलिस अधिकारी भी कह चुके हैं कि आप तो बिल्कुल नक्सलाइटों जैसी बात कर रहे हैं। हमने कहा तो गांधी की बात है, गांधी ने यही कहा है ना। तो आप कैसे समझते हैं कि अगर आपको सब कुछ पहले से मालूम था, अब भी आपको मालूम है कि ये हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ये अदालत है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उनका, जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, वो सब बेकार की है, ये आपका मानना है कि गांधी जी भी ऐसा कहते थे। फिर आपको सामने एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट है जिसके पास इतनी बड़ी फोर्स है, उसके पास मिलिट्री है, उसके पास पुलिस है, उसके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ऐसे बिल्ड किया हुआ है कि वो शहरों पे सेंट्रलाइज्ड उन्होंने पावर की हुई है, गांवों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको ऐसा सिस्टम पैरेलल कैसे खड़ा होने देंगे? वो कौन सा रास्ता है? वो भाई, जनता की ताकत ज्यादा है कि सरकार की ताकत ज्यादा है? कैसे दिखाएगी जनता अपनी ताकत? हाँ, वो तो जनता फैसला करेगी। वो हमको नहीं पता कि क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे। लेकिन पहली बात यह है कि जनता को समझ में आना चाहिए कि ये सिस्टम उसे न्याय नहीं देगा, उसको जीने नहीं देगा, उसके साथ जुल्म करेगा, उसको गरीब बना रहा है, उसके संसाधन छीन रहा है, उसकी रोजगार छीन रहा है, बैंकों में रखा हुआ पैसा उसका। पहले तो इन्होंने जो घरों में लोग पैसा रखते थे भारत के, उसको जबरदस्ती नोटबंदी करके बैंकों में ले आए कि तुम अपने घर में बचत नहीं कर सकते, तुमको बैंकों में रखना पड़ेगा। फिर अपने पूंजीपति दोस्तों के
माध्यम से पूरे बैंकों को लुटवा दिया, बैंकों को खाली कर दिया गया है, बैंक धड़ाधड़ दिवालिया हो रहे हैं और सारे ये जो पूंजीपति लोग हैं बैंकों में रखा हुआ गरीबों का पैसा लेकर भाग रहे हैं। तो इन्होंने जनता को गरीब बनाने का पूरा सिस्टम अपनाया हुआ है। तो जनता को ये समझ में आना चाहिए कि ये हमारी जमीन भी छीनेंगे, रोजगार भी छीनेंगे, बैंकों में रखा पैसा भी लूट लेंगे, ये लुटेरे लोग हैं और अदालत हमारा साथ नहीं देगी। अदालत भी लुटेरों के साथ है, पार्लियामेंट लुटेरों के साथ है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसी पॉलिसी को, उसी इकोनॉमिक पॉलिसी को सपोर्ट करती हैं। तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो समाज है, हमारा जो बच्चों का जीवन है, वो इस सिस्टम में सुरक्षित नहीं है। जनता जिस दिन ये समझेगी और खड़ी हो जाएगी, जनता से बड़ा फिर कोई नहीं है। नहीं, हाइपोथेटिकली मान लीजिए आपकी कैंपेन इतनी सफल हो गई कि गांवों का बच्चा बच्चा इसको समझने लगा, उसको साफ हो गया कि ये बात हिमांशु कुमार जी जो बोलते हैं ये सही है बिल्कुल, तो उनको आगे कोई रोड मैप तो देने वाली फोर्स होगी ना। वो लोग आप अपने आप से, तो आप स्पॉन्टेनियसली तो इसका कोई लाइन नहीं निकलेगी, कोई पाथ नहीं निकलेगा, वो कैसे होगा? वो समझ में नहीं आ रहा। सिस्टम को तो एक्सपोजर कर देंगे, उनका विश्वास इस सिस्टम से उड़ जाएगा, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये इनकी आपकी कंट्राडिक्शन इतनी है, ये कोलैप्स होने के किनारे पर है, कहीं भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। जब आपको इसको और बारीकी से एक्सपोज करेंगे ये पॉसिबल है, लेकिन उसका आगे का कोई रोड मैप तो होना चाहिए ना कि ऐसे होगा जी। तो ये एक दिन में तो नहीं होगा, ये जनता जब समझेगी। आप क्या सोचते हैं? जनता तो बहुत निचले स्तर पर है, उनको तो आप समझाने जा रहे हैं ना, आप तो समझे हुए हैं, आपके सामने क्या है? हाँ, नहीं तो हमारा मानना ये है कि इसमें कलेक्टिव विजडम की जरूरत पड़ेगी। ओके, फ्यूचर का प्लान बनाने के लिए एक प्रोसेस होगा, उसका कलेक्टिव विजडम का इस्तेमाल होगा, एक्सपीरियंसेस, समाज के अपने एक्सपीरियंसेस उसमें इनपुट के रूप में आएंगे, समाज उसको इवॉल्व करेगा कि हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं और सब लोग मिलकर के, क्योंकि ये एक प्रोसेस होगा कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, अब हमें इस सिस्टम को हटाना है, बदलना है, नया सिस्टम लाना है। तो लोग मिल करके, जिसमें समाज के एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं हैं, जो इस व्यवस्था के पीड़ित लोग हैं, वो सब मिल करके भविष्य की समाज की रूपरेखा इवॉल्व करेंगे। वो एक प्रोसेस होगा, ये सिस्टम जाएगा, नया सिस्टम आएगा और वो एक इवोल्यूटरी प्रोसेस होगा जिसमें लोग नए समाज की रचना करेंगे और उसका सिस्टम बनाएंगे। मैं अभी बैठ करके पूरा का पूरा सिस्टम लोगों को दे दूं तो वो ऑर्गेनिकली डेवलप्ड सिस्टम नहीं होगा, समाज उसको डेवलप करेगा तो वो ऑर्गेनिक सिस्टम होगा। आज तक की वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल है यहाँ लोगों ने देखिए डिसाइड करके, हिस्ट्री कभी डिसाइड करके, मतलब उन्होंने अपनी राज्य सत्ता आप स्थापित कर ली हो? दुनिया में अगर राज सत्ता की स्थापना हुई है तो वो भी कोई पहले से बनाए हुए सिद्धांत से नहीं हुई है, वो जरूरत से इवॉल्व हुई है जी। राज्य सत्ता जो बनी है वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी आई है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण हुआ है, वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस से हुआ है जी। तो नई जो व्यवस्था आएगी वो भी ऑर्गेनिक प्रोसेस के थ्रू ही आएगी। हम लोग ये मानते हैं। नहीं, आपके पास रोड मैप है नहीं या बताना नहीं चाहते? एक बात स्पष्ट कीजिए। नहीं, मैं तो बता अभी तक आपके पास कोई तो अपने इमेजिनेशन में आपके, ये तो मैंने 10वीं क्लास में सोच लिया कि एक आदर्श समाज व्यवस्था हमारी कैसे होगी, ये 10वीं क्लास में मैंने सोच लिया था। लेकिन मेरे दिमाग से सारा भारत बदल जाए ये मैं ना तो उम्मीद करता हूं ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसमें सभी लोग शामिल होकर, महिलाएं, दलित, नौजवान, बेरोजगार नौजवान, ये सब मिल करके बताएं कि हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं और ऐसी व्यवस्था बने
और जैसे राज्य सत्ता आई है जनता के द्वारा, वैसे ही ये राज्य सत्ता की जो ताकत है और इसकी बुराइयां हैं, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस के तहत आए, ना कि एक लीडर या एक सिद्धांत, एक आइडियोलॉजी के तहत हो। वो नहीं होगा। हमारे बहुत सारे वामपंथी लोग ये सोचते हैं। यानी इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं पर्टिकुलरली सवाल पूछूं तो कि 1917 में जो रशिया में हुआ, जो तब्दीली हुई, 1949 में जो चाइना में हुई या कुछ और इसी तरह के देशों में हुई, उस चेंज को आप गलत समझते हैं? नहीं, गलत नहीं समझता हूं। वो भी चूंकि सेमी नेचुरल और सेमी कंस्ट्रक्टेड था। ओके। उसमें एक आइडियोलॉजी, एक पार्टी, एक फिलॉसफी और एक प्रोसेस इन्वॉल्व था। तो जैसे ही उसका वो असर खत्म हुआ, फिर से नेचुरल प्रोसेस के तहत समाज जब इवॉल्व हुआ तो वो सिस्टम गिर गए, खत्म हो गए। तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा वो गलत था, बहुत अच्छा था। उसमें उस समय की जो बुराइयां थी, शोषण था, वो खत्म हुआ और एक हम आगे बढ़े। पूरी दुनिया ने उससे कुछ सबक सीखा है। अब हमें उससे और आगे जाना पड़ेगा। ओके। अच्छा, अगर साम्यवादी सिस्टम भी नहीं चला है तो साम्यवाद का विचार गलत नहीं है। सब बराबर होने चाहिए, न्याय होना चाहिए, ये विचार खराब नहीं है। साम्यवाद का आपने अध्ययन किया है? हाँ। कोई किसी एक किताब का रेफरेंस दे सकते हैं कि आप, मैंने कार्ल मार्क्स की ये बुक पढ़ी है? नहीं, कार्ल मार्क्स की भी लिखते पढ़ी हैं। कौन सी? कोई एक राइटिंग पूछ रहा हूं मैं, कोई एक लिखता आपने पढ़ी? हाँ, दास कैपिटल भी पढ़ी है। पढ़ी है? हाँ। ये सारी पढ़ ली आपने? हाँ। ये तो कॉमरेडों ने भी नहीं पढ़ी है। तो सवाल ये है कि पढ़ लेने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि दुनिया को बदला कैसे जाए, जो अभी चल रहा है उसमें से निकला कैसे जाए, आगे कैसे पहुंचा जाए। तो वो तो काम करने से ही आएगा ना, समझ आएगा। कैपिटल का जो आज का ऑपरेशन है, मार्क्स की जो आपने कैपिटल का अध्ययन किया, उससे क्या डिफरेंस है? को फंडामेंटल रूल्स या टूल्स जो मार्क्स ने बताए हैं कैपिटल के 3 वॉल्यूम्स में, जो क्लासिकल, उस टूल्स में कोई चेंज देखते हैं आप? देखिए, जो क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या वो टूल आज भी वर्केबल है या वो आउटडेटेड हो चुके हैं? देखिए, हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। ओके। कि दुनिया कार्ल मार्क्स के हिसाब से ही चलेगी। वो उससे भी इवॉल्व होगी, आगे जाएगी। लोग बहुत डायनामिक है, ये ठीक है, ये जनरल बात है। हाँ। लेकिन मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं कि उसने जो टूल बताए थे पॉलिटिकल इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो आज समझ रहे हैं आप, आपका मत्था तो आप कैपिटलिज्म से लाल लगा रहे हैं ना, बात कोई भी हो, आज उसको अंडरस्टैंड करने के बेटर जो टूल हैं वो क्या हो सकते हैं? नहीं, अंडरस्टैंड करने से आपका क्या ताल्लुक है? आज जो हो रहा है, क्या ऑपरेशन जो चल रहा है, हाँ, इस मैकेनिक्स को समझने की, फॉर एग्जाम्पल मुझे मार्क्स की नजरों से दुनिया को क्यों देखना चाहिए? नहीं, मैं आपकी नजर पूछ रहा हूं। हाँ, मैं आपके हिसाब से कौन से टूल हैं जो आज की पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझ सके या आज की व्यवस्था को समझ सके, इसका सुपर स्ट्रक्चर को, इसके बेस को, टोटल सिस्टम को? मुझे आप उस वोकैबुलरी में सोचने, समझने और एक्सप्रेस करने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप अपने हिसाब से इसमें कम्युनिस्ट फंस गए हैं। कम्युनिस्ट उसमें फंस गए हैं, मैं उसमें नहीं फंसूंगा। ओके। आप कौन सी वोकैबुलरी में इस सिस्टम को? मैं तो फ्रेश नजर से दुनिया को देखूंगा। या जनता उसको कैसे एक्सपीरियंस कर रही है, कैसे देख पा रही है, कैसे वो बाकी के लोग उसको सब देख पा रहे हैं, मैं उस नजर से देखूंगा। क्योंकि हमारे जो मार्क्सवादी दोस्त हैं वो उस नजर से, जो किताबी नजर है, किताबी नजर से देखने की कोशिश करते हैं, किताब के एनालिसिस से समझने की कोशिश करते हैं और किताब के ही तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ओके। और लोग समझ नहीं पाते ये क्या बोल रहे हैं। मेरी खासियत यह है, जो मुझे बताया जाता है,
कि मैं चीजों को बहुत सरलता से लोगों को समझा पाता हूं। और वो इसलिए समझा पाता हूं क्योंकि मैं न तो उसको किताबी तरीके से नजर से देखता हूं, न किताबी नजर से उसको एनालिसिस करता हूं, और न किताबी नजर से भाषा में समझाता हूं जी। तो मुझे उसमें नहीं फंसना है। मैं जैसा हो रहा है वैसा साफ साफ देख पा रहा हूं, वैसा साफ साफ समझा रहा हूं। और मार्क्सिस्ट लोग कहते हैं कि हमारे मार्क्सवादी लोगों को भी आपकी लिखी हुई जो लेख हैं वो गांव गांव में बांटने चाहिए, और वो बांट भी रहे। मार्क्सवादी लोग बहुत सारे मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स छाप कर गांव में बांट रहे हैं कि गांव के लोगों को ये भाषा समझ में आएगी। ये समझ सीधी सीधी बताती है कि कैपिटलिज्म क्या है, राज्य क्या है, दमन क्या है। तो मेरा एक अपना तरीका है सोचने का जो बिल्कुल सरल है और वो जनता की समझ में आता है। मैं वही सरल तरीके से समझना चाहता था कि इसको छोड़ो, क्योंकि आप अपनी स्पीचेस में कैपिटलिज्म का हवाला देते हैं बार बार, ये एक्सप्लॉइट कर रहा है सिस्टम, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। इसीलिए मैं ये पूछना चाहता था, आपकी सरल भाषा में कैपिटलिज्म भी छोड़ दो, मौजूदा जो व्यवस्था है उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि अगर किसी लेमैन को समझाना हो कि ये वही व्यवस्था है, इसके ये नियम है, ऐसे चल रही है, आपने ये करना है, वो दो सेंटेंस में अगर आप एक्सप्लेन कर सके तो, कि मैं ये मेथड संदर्भ बताइए ना, किस संदर्भ में समझाना है। मान लो आदिवासी है, आदिवासी के ऊपर आकर के पैरामिलिट्री फोर्सेस ने हमला किया, ओके, तो आदिवासी को समझाना है कि ये हमला क्यों हो रहा है। ये पूंजीवादी हमला जो है इसको हमने आदिवासी को समझाना है जी, है ना। तो वो तो बहुत सरल है कि भाई जो दुनिया के अमीर लोग हैं वो अमीर लोग, उनको दो चीजें अमीर बनने के लिए चाहिए। एक है जो प्रकृति के संसाधन है, खनिज है, जंगल है, पानी है, नदी है, ये चाहिए, और दूसरा चाहिए मजदूर की मजदूरी। ओके, तो और बैंकों में रखा हुआ पैसा, ये तीन चीजें चाहिए उसको। पूंजी उसको बैंक से मिलेगी जिससे वो मशीनें और ये सारी चीजें खरीदेगा, मजदूरी देगा, और उसको प्राकृतिक संसाधन सरकार दे देगी। अब आप प्राकृतिक संसाधनों पर रह रहे हैं तो वो पूंजीपति सरकार को खरीद करके अपने पैसे से, पुलिस को खरीद करके, नेताओं को खरीद करके आपको यहां से जबरदस्ती बंदूक के दम पे हटा रहा है जी। यही पूरा सिस्टम है। अच्छा, तो आदिवासी को समझ में आ जाता है। ये बात समझाने के लिए आप गांव गांव जाते हैं, साइकिल मार्च भी करते हैं, बहुत से एफर्ट किए हैं अब तक, लेकिन उनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट है और बहुत सारे चैनल्स हैं। इसके साथ वो जो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में कि आप समझते हैं कि आप लोगों को भी ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करना चाहिए, या इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है? मैं भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करता हूं, या मेरा भी जो लेख हैं या वीडियोस हैं वो बहुत फैलते हैं। मैं जो फेसबुक पर लिखता हूं उसको लोग कॉपी करके व्हाट्सएप के थ्रू फैलाते हैं, कई अखबार उसको छापते हैं, कई मैगजीन्स में उस आर्टिकल के रूप में उसको छापते हैं। मेरे विचार भी बहुत व्यापक होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन उसके साथ साथ हमें वर्तमान जो सत्ता है उस सत्ता को मैसेज भी देना होता है जी, और जनता को भी मैसेज देना होता है जी कि इनसे डरना नहीं है, क्योंकि ये जो सत्ता है ये जनता को डर का मैसेज देती है कि तुम हमसे डर के रहो, नहीं तो हम तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला देंगे, तुम्हारे घर एनआईए भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, तुमको फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, जेल में डाल देंगे। और वो लगातार सामाजिक कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को जेलों में डाल भी रही है जी। तो ऐसे में लोग डर जाते हैं। तो हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, इनसे डरो मत और लड़ो,
बदलो इस दुनिया को। उसके लिए साइकिल पर जब हम जाते हैं तो वो निडरता का मैसेज जाता है लोगों के पास कि हमने डरना नहीं है जी, हमने लड़ना है, बदलना है। तो वो मैसेज देने के लिए हम निकलते हैं जनता के बीच में। वरना साइकिल यात्रा में हम जितने लोगों से मिलते हैं उतना तो हम एक दिन में सोशल मीडिया के थ्रू मिल लेते हैं, अपने हमारी बात पहुंच जाती है। लेकिन एक जनता के बीच में निडरता का संदेश देने के लिए साइकिल यात्रा या पैदल जाना या सड़क पर उतरना लोगों के साथ। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सेक्शन इंटेलेक्चुअल्स का ऐसा भी है जो दरवाजों के अंदर, चार दीवारी के अंदर बैठा होता है और वो ये क्लेम करता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान हमारे पास है, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पे नहीं जाते, उससे उनका कोई कंसर्न नहीं है। अगर कोई भी वहां जाकर कोई काम करता है उसमें वो गलतियां निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ज्ञान तो उनको है, ज्ञान है, हाँ ज्ञान तो है, ज्ञान होने में कोई मतभेद नहीं है, ज्ञान बहुत है। लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल लोगों के बीच काम करने में होना चाहिए। लोगों के बीच जाना पड़ेगा हमको। और इसलिए मेरा सुझाव सभी से ये है कि खास तौर से जो अभी थोड़े सीनियर हो गए हैं लोग, मैं उनके बीच में देख रहा हूं उनमें निराशा भी है और वही लोग ज्यादा घरों में बैठ गए हैं। तो मेरा कहना यह है कि आपके पास तो खोने को कुछ नहीं है। आपको अगर जेल में भी डाल दिया जाए तो जेल से भी क्या डर है, मरने का भी डर नहीं होना चाहिए। आपने अपनी जिंदगी जी ली है बहुत, तो अब तो बिल्कुल निकले घर से। आपको ऐसा डर क्यों नहीं लगता? उनको तो लगता है वो पिटाई करेंगे, मारते हैं, जेल में डालते हैं, खाना नहीं अच्छा मिलता, टॉर्चर करते हैं, पुलिस कतवालियों में करते हैं। आपको ये डर कब से मतलब खत्म हो गया आपका डर? ही हाँ, डर तो मैंने इसको बहुत ही सिस्टमेटिकली अपने डर पर काम किया है। डर क्या होता है, डर की पूरी बनावट को देखा है। डर किस तरह से मेरे भीतर काम करता है, मेरे ब्रेन को कैसे वो ग्रिप में ले लेता है, कैसे वो इमेजिनरी तस्वीरें बनाता है जी, मौत की, जेल की, तकलीफ की, कैसे वो फियर क्रिएट करता है। तो मुझे समझ में आया मैं खुद ही फियर हूं। फियर की फैक्ट्री मेरे भीतर ही है, फियर बाहर नहीं है, मेरे भीतर है। तो उस पर मैंने काम किया और उसको समझने के बाद अब जब फियर आता है तो मैं उसको तुरंत टैकल कर लेता हूं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि फियर आता नहीं है, फियर आता है, लेकिन अब मेरा ब्रेन उसको तुरंत टैकल कर लेता है कि अच्छा ये इमेजिन कर रहा है। क्योंकि जैसे मौत है, मौत का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम अपनी मौत का कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। एक खास पल था आपके जीवन में, एक खास टर्निंग पॉइंट जिसको आप बोलते हैं अपनी स्पीचेस में, कि जब आपका आश्रम 16 एकड़ में बना हुआ आश्रम, इसको बनाने में आपके 18 साल लगे थे, वो उस पर सरकार ने बुलडोजर फेर दिया। शायद कांग्रेस सरकार थी या बीजेपी की? वहां बीजेपी की थी, केंद्र में कांग्रेस की। ओके, बीजेपी सरकार ने वहां बुलडोजर फेर दिया। वो पल कैसे थे? तब भी आपको, उस समय भी आपको डर नहीं लगा? मैं उसके अगले दिन दंतेवाड़ा में अपने बाल कटवाने गया सैलून पर। तो वो जो सैलून वाला था उसने कहा कि सर, पुलिस वाले यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आपके आश्रम पर बुलडोजर चल रहा था और आप हंस रहे थे जी, और मेरी जितनी भी फोटो और वीडियो है उसमें मैं हंस रहा हूं। उसी वक्त की?